रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस। सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। वॉइस ऑफ एशियंस के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर करते हैं आज की खबरों की तरफ। लुधियाना के गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज मॉडल टाउन में एनुअल एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के 5000 स्टूडेंट्स को मौका दिया गया कि ट्रैक पर अपने अपने कर्तव्य दिखा सकें। इस मौके पर मुख्य मेहमान थे लुधियाना के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल, जिनका स्वागत किया प्रिंसिपल डॉक्टर चरणजीत महल ने। आइए देखते हैं विकास भामरी की एक खास रिपोर्ट। Because this is what they have learnt in GNGC, never to give up. Yes girls, well done, very near to the final point, and here they go. Congratulations to all the winners. Towards the last obstacle, here they have to blow the fly and find out the coin from it. Yes, they are done with it. Winner. Audience, let's keep encouraging the last participants who do not bother about winning or losing, but it's the complete. Round of applause once again. Let every citizen around the globe take the pledge to carry the message of love and peace propounded by the great saint himself. ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। मैं डॉक्टर चरणजीत कौर महल प्रिंसीपल गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज बोल रही हाँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਤੇ ਫੀਲਡ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पर साड़ी कोशिश है कि आम सारे विद्यार्थी समझण कि पढ़ाई के नाल नाल खेडां विच हिस्सा लेना भी बहुत जरूरी है, तां ही उन्हां दी शख्सियत का पूरा विकास हुंदा है। सो सारे विद्यार्थी अज ये स्पोर्ट्स मीट विच हिस्सा लै रहे हैं अते अज दे मुख मेहमान साडे कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल हन अते वो भी सारे विद्यार्थियों नूं इत्थे पहुँच के एक सुनेहा देणगे कि जी जान नाल मेहनत करो, पढ़ाई करो, खेडां विच हिस्सा लो अते को करिकुलर एक्टिविटीज़ विच पार्टिसिपेट करो ते अपनी जिंदगी नूं सुधारो, तां कि तुसीं पढ़ाई पूरी करन तो बाद जिथे कुछ कमाउण दे काबिल होवो उत्थे समाज दा सुधार कर सको अते अपने परिवार नूं वधिया तरीके नाल संभाल सको। लुधियाना के मानव रचना स्कूल बसंत एवेन्यू में 2 दिन का मेगा ब्लड यूनिट कैंप लगाया गया, जिसमें बच्चों के पेरेंट्स ने आकर कुल 400 यूनिट ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर डीएमसी की वैन भी खास तौर पर पहुंची और आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया प्रिंसिपल डॉक्टर रूपाली सैनी ने। आइए देखते हैं विकास भामरी की एक रिपोर्ट। Today we organized the 4th mega blood donation camp at Manurashna International School, Ludhiana, and we have been organizing these kind of camps in the past also. And because to sensitize, what we felt was to sensitize our present generation towards humanity, towards environment, and towards a noble cause, we must be organizing these kind of events. And we were associated with Can Fight Cancer organization and Rehra Seva team as well. They are aggressively and genuinely involved in these kind of noble activities, and they associated with us, and it was a great success. We had more than 300 donors who voluntarily came forward, and many parents also who donated blood. So I think it was a great success for us.
लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा में 2 दिवसीय सुपरलेटिव शो लाइफस्टाइल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के डिजाइनर ब्राइडल, इंडियन और लाइफस्टाइल ने आकर अपने डिजाइनों को प्रदर्शित किया और 55 के करीब स्टॉल लगाए गए और लोगों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा। आइए देखते हैं विकास भामरी की एक खास रिपोर्ट। विकास जी, TP Closet Delhi. We are here at Sarleen exhibition, the Superlative, and we have brought today a ruffle collection like आए आज ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ लुधियाना वासियों ਲਈ। You can see because this is ruffle collection. This is very latest and very famous. पहले तो मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोग आए और हमारे ये इतने बड़े शो को कवर कर रहे हैं। द सुपरलेटिव शो पूरे पंजाब का सबसे बेस्ट शो है और हम पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। ये एक एग्जीबिशन है जो कि फैशन, ज्वेलरी और लाइफस्टाइल पे है और यहाँ पे आपको बहुत टाइप के स्टॉल्स मिल सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइनर वेयर, डिज़ाइनर ज्वेलरी, होम डेकोर, घर की सजावटों की भी चीज़ें हैं, बेड लिनन, वॉल डेकोर, गार्डन फर्नीचर। डिज़ाइनर वेयर में आपको इंडियन वेयर, ब्राइडल वेयर, वेस्टर्न वेयर, इंडो वेस्टर्न्स सभी टाइप के क्लोथ्स मिलेंगे। करीबन यहाँ पे 55 स्टॉल्स हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल स्प्रिंग समर शॉपिंग भी है और साथ में कुछ थोड़ा पार्टी वेयर भी है। सो आप जो आगे की सीज़न है उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि जो सबसे ख़ास बात हमारे एग्जीबिशन की हमेशा रहती है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये शो में पूरे कंट्री से पार्टिसिपेंट्स लाने की। ये सिर्फ लुधियाना या लोकल पंजाब के पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, पंजाब के भी पार्टिसिपेंट्स हैं। साथ ही साथ वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम गुजरात, बेंगलोर, कानपुर, जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली। तो सबसे बेस्ट बात है कि आपको पूरी कंट्री में से जो अच्छी चीज़ें, बेस्ट चीज़ें हैं वो मिल रही हैं एक प्लेटफॉर्म में। आप अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं, अपने घर की शॉपिंग भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये 2 दिन के एग्जीबिशन है, सैटरडे और संडे की, आज और कल की। मैं लुधियाना वासियों को यही कहना चाहती हूँ कि इट्स अ हार्ट फेल्ट इन्विटेशन। मैं आप सभी को बहुत अच्छे से निमंत्रण देना चाहूँगी कि आप ज़रूर द सुपरलेटिव शो एग्जीबिशन, जो कि आज और कल सैटरडे और संडे को है, होटल पार्क प्लाजा लुधियाना में, आप ज़रूर आइए और शॉपिंग का पूरा आनंद उठाइए। देयर इज़ लॉट ऑफ शॉपिंग। आप यहाँ पे आएंगे तो हम आपको इस तरीके से वेलकम करना चाहते हैं कि आप हमारे गेस्ट हैं, हमारी फैमिली में, हमारे घर पे ज़रूर आइए, बहुत शॉपिंग कीजिए, बहुत एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ आइए। होम डेकोर की शॉपिंग कर सकते हैं आप, एंड प्लीज़ कम टू द सुपरलेटिव शो। लुधियाना में ही शारीरिक शोषण से तंग आई एक युवती ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसके माँ बाप ने इल्जाम लगाया कि शादी की तारीख पक्की होने के बावजूद युवक ने शादी करने से ना कर दी, जबकि लड़की उससे शादी करने के लिए कनाडा को छोड़कर भारत आई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और देखते हैं विकास भामरी की रिपोर्ट। रेप केस कर ले ठीक है, रेप केस कर ले जी ठीक है, इन्होंने नहीं ना पता हुंदा की है। रेप केस करके पैसे कर लो, खून आएगा, किनारे पई हुई है। मेरी कुड़ी ने साफ है गल कह दी है। अगर ना मैनू इत्थों इंसाफ मिलिया, मेरे घर च मेरी लाश जाएगी। असं तो कल दे कुड़ी भी दे देवे, साडी कुड़ी ने साडे घरों निकल जावे। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇਟ ਸਿਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਚ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ? ਰੇਪ ਕੇਸ ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਮਰੇਗਾ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਮਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਪਿਓ ਮਰੇਗਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੜੀ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੇਪ ਕੇਸ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਰੇਪ ਕੇਸ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਪ ਕੇਸ ਚ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਆ ਪਕੜੇ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। क्यों कुड़ी इज्जत दो, अपनी धी बेचन मेरी धी ना रेप करके कहते साडे तो पैसा लेके जाओ, फिर सिखाएंगे। जाके देखो कुड़ी दा हाल की है, अंदर एक बार जाके देखो, हर बंदा रो लेगा, उन्हें लगी नहीं हैगा कोई भी। 3 वारी असी 3 वारी दरखास्त दे चुके, 3 वारी दरखास्त दे के असी साडा कभी किसी अफसर को लेके जा रहे, कभी किसी अफसर लेके जा रहे, साडे को सारे प्रूफ है कि पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं, सारे प्रूफ है कि वो उन्होंने बंदा ही कुछ कह रहा उन्हें ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੇਰਾ 20 ਫਰੈਂਡ ਹਾਰਟ ਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਰਾਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। मैं मोदी जी के कहते, मोदी जी कहते ए बनाए ने कानून बनाए, ए कानून बना के कुड़ियां रेप करके छोड़ दो, कोई सुनाई ना होवे, कुछ ना होवे, अंदर खाली पैसे ले लो, सानू कोई इज्जत चाहिए। अगर ना मिलिया तो मेरी इथों करन लाज, मेरी किस्मत में हुण बच गई, हुण मैं बच्चा ही नहीं, हुण मैं मर जागी अगर मेरी इंसाफ ना मिलिया। सानू बहुत टाइम हो गया वेट करते रहना, वो कुड़ी दे नाल मर जाना सी, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। उसको देखते हुए आज किसी से भी कोई भी हमें कोई भी किसी तरीके का पुलिस वाले आते हैं, आगे हमारे बयान मुँह लेके चले जाते हैं, पर कुछ भी कोई कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं है। वो सब कहते हैं यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, पता नहीं कब होगी जब लड़की हमारी शायद इस दुनिया में रहे ना, हम कुछ नहीं कह सकते। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी 10 जनवरी 2018 को यहाँ से कनाडा स्टडी करने के लिए गई, मेरा बेटा भी साथ में गया था। वहाँ स्टडी करते करते बहुत अच्छी स्टडी कर रही थी। शुभम क्वात्रा इसके लिंक में आया फेसबुक के माध्यम से। जब लिंक में आया तो ये कहने लगा कि मेरे को यहाँ की इंडिया की लाइफ पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आजा, हम दोनों शादी करके और मुझे स्पाउस बना के मुझे तो साथ में ले जाना। मेरी बेटी उसकी बातों में आ गई। मुझे तब तक मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, और मैं हीरो हार्ट में 28 अगस्त को मैं वहाँ पर एडमिट हुआ, और 12 अगस्त को मैं वहाँ से 28 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक मैं वहाँ पर एडमिट रहा। और 12 सितंबर को जैसे मैं डिस्चार्ज हुआ, मेरी बेटी यहाँ पर इंडिया में आ चुकी थी बिना बताए, सिर्फ इस लड़के के चक्कर में। और ये लड़का खुद उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया था, और उसने 16 तारीख को उसका व्रत होता है, वहाँ पर अष्टमी का व्रत होता है। इसको कहा कि अपने प्यार का वास्ता देके इसको शराब पिलाई, शराब पिला के मेरे ही जो घर पे जो नीचे वाला पोर्शन है उसके रूम में ले गया, और उसके साथ वहाँ पर इसने गलत काम किया। उसने जो भी करना था गलत काम किया। मैं एक बाप होने के कारण भी नहीं ऐसी बातें बोल नहीं पा रहा कि जो नहीं बोलनी चाहिए, वो भी मैं मीडिया के सामने आज मजबूर होकर बोल रहा हूँ मैं। फिर हमारे दोनों फैमिलियों में एक एग्रीमेंट हुआ कि हम लड़के की शादी कर देंगे आपकी लड़की के साथ। अगले दिन ही हमने टीआरपी में वहाँ पर इनकी फैमिली और हमारी फैमिली दोनों के बीच में रोका सेरेमनी हुई है वहाँ पर 17 तारीख को। अगले दिन ही सारे कार्य व्यवहार साहब में चलते रहे। जो दिवाली और करवा चौथ के जितने भी गिफ्ट से जो भी आना जाना दोनों परिवारों में एक दूसरे के साथ लगा रहा। लड़का फिर लड़की को साथ में लेके जाता रहा, और बार बार उसको अपने प्यार का वास्ता देकर उसका शरीर शोषण करता रहा जो भी था। लास्ट मोमेंट पर हमने जब शादी की बात की तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम 27 तारीख को दोनों परिवारों के बंदे बैठे, 27 तारीख को हम लोग शादी कर देंगे। सारा कुछ हो गया, हमने अपना पैलेस भी बुक करवा दिया, सारा कुछ हो गया। जब 27 तारीख की जब 1 महीना रह गया तो इसके मम्मा पापा हमारे घर पे आए और कहने लगे कि थोड़ा डिले कर देते हैं शादी को। हमने कहा नहीं, हमारा बेटा कनाडा से जो कि अपनी सिस्टर की लड़की से और उसके 2 कज़न जो ऑस्ट्रेलिया से थे वो भी वापस आ रहे हैं, तो उनका क्या होगा। कह रहे कोई बात नहीं, हम डिले कर देते हैं। जब हमने थोड़ा आनाकानी की डिले करने में तो उन्होंने एक डिमांड रखी कि हमें 50 लाख रुपया और रोटी गाड़ी चाहिए, अगर तुम दे सकते हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हम सोच विचार के हम सब बताएंगे जो भी है। इस चक्कर में मैं इतना परेशान हो गया ना, इनको पता था कि मेरी हैसियत नहीं है,
पहले रिश्ता किया, उनको पता है कि हैसियत नहीं है कि बहाना लगा के चलो अपने आप ये रिश्ता तोड़ देंगे। उसके बाद 27 तारीख को शुभम मेरे घर पे आया, मेरी बेटी के साथ उसने जो उसने किया उसके बारे में कुछ मैं बता नहीं सकता। जितनी तोड़ फोड़ उसने की और उसको धक्के मार के उसको बाहर निकल गया। कह रहा अगर तूने कुछ भी ऐसी बात की ना, हम लोग पैसे वाले हैं, हमारी अप्रोच बहुत है, कि ऐसी बात कुछ भी की तो हम कुछ भी कर सकते हैं और तेरे भाई को झूठे केस में फंसा के सब कुछ करवा देंगे, ये वो कर देंगे, सारा कुछ उसकी लाइफ स्पॉइल कर देंगे। मैं तो हार्ट का पेशेंट था, मैं तो बैठ गया वहाँ पर। इसकी बातें सारी सुनकर मुझे इतनी टेंशन हो गई। मेरी वाइफ जो पिछले 10-12 साल से इतनी डिप्रेशन की मेडिसिन, इतनी हैवी डोज लेती है, वो भी सुन के रो के पागल हो गई। और मेरा बेटा जो बाहर से आया था वो भी रोने लग गया। हमने एक दरख्वास्त दी थी जो 5/1 को CP ऑफिस में दी थी और 14 को इनके प्रेशर, जितना भी इन्होंने प्रेशर डाला, प्रेशर होने के बाद हमने वो दरख्वास्त, हमें पता है कि किस हालातों में हमें वापस लेनी पड़ी। एक मजबूर होके एक बाप क्या कर सकता है, अपने बच्चों की सुरक्षा कर सकता है और क्या। जहां एक इंसानों से इतनी धमकियां मिलने लगी, धमकियों के बावजूद हमने जब दरख्वास्त वापस ली, उसके बाद हमारा बेटा जिसकी 4 तारीख को फ्लाइट थी, 4 फरवरी की, और उसके बाद मेरी बेटी को फिर से इनकी बातें सुननी पड़ गई कि ये हो रहा है वो हो रहा है। और उसने इतनी डिप्रेस्ड होगी, उसने एक दरख्वास्त फिर दी उसने CP ऑफिस में, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये दरख्वास्त दी उसने 6/2 को दी है दरख्वास्त, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर बेटी गई 15 तारीख को गई है CP ऑफिस में, फिर दरख्वास्त दी वहाँ पर दीपक पारेखी जी के पास। फिर वहाँ का UDI नंबर लगा और सारा कुछ चलो होने लगा। फिर पुलिस अफसर कभी हमें यहाँ बुला रहे, कभी वहाँ बुला रहे हैं, और उसकी जो दरख्वास्त की कापियाँ ऐसे बांट रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कोई पर्चे बांट रहा होता, कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। उस जो दरख्वास्त होती है उसको पढ़ के ये सारा निकालते हैं कि हम क्या करें, उसका क्या रिजल्ट कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे परसों की बात है, जब बेटी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, मैं घर से बाहर था तो मुझे मेरी वाइफ का फ़ोन आया तकरीबन 4 बजे कि बेटी ने 20 गोलियां एक ही बार खा लिया और उसके हाथ में सुसाइड नोट है और वो रो रही है वो। और उसने ये भी साबित करने के लिए कहा कि तू ये बता कि तू शराब पीती है, मैं तेरे साथ हूँ, हम अपने कमरे में एक वो बनाएंगे कैबिन जहाँ पे तेरी मेरी जमेगी, तू वहाँ से आ जा। उसको जबरदस्ती शराब पिया के ये सब कुछ किया उस लड़के ने, उसको सब कुछ मालूम था, उसके साथ एग्री था। लास्ट मोमेंट में आके उसने ये धोखा दिया है और मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। बस शराब पीनी भी इंसाफ और कहना मैनू लड़कियां उधर नहीं पसंद। कल रात ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ICU 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਸੁਧਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਸੀ? ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ 10 ਤੋਂ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। इंटीमेशन आई है पुलिस स्टेशन कि एक लड़की ने कोशिश की थी सुसाइड की, तो कल गए थे स्टेटमेंट लैन पर शी वाज अनफिट। हुण साडी जिहड़ी लेडी सब इंस्पैक्टर उत्थे जाऊगी तो जो भी स्टेटमेंट देगी उसके अकॉर्डिंग जिहड़ी भी बनती कार्रवाई की जाऊगी। सर उन्होंने साडे सामने ही SHO ਨੂੰ फोन किया तो वो कहना मेरे को टाइम नहीं है, जो होएगा ਅਸੀਂ आ जाएंगे। नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੋਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। तरफ से कोई कुछ नहीं हो रहा, हेल्प नहीं मिल रही क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कल उसने अटेम्प्ट की थी, कोशिश की थी सुसाइड करने की, उसी टाइम हमारे पुलिस स्टेशन से मुलाजिम गए थे उसकी स्टेटमेंट लेने, बट वो अनफिट थी। अब वो फिट है, जो भी स्टेटमेंट देगी उसके अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो कर देंगे। सचखंड श्री हजूर साहिब जत्था कमेटी और राष्ट्रीय सिख संगत के द्वारा लुधियाना रेलवे स्टेशन से एक जत्था रवाना किया गया, जो खास तौर पर पटना साहिब भी दर्शन करने जाएगा और 4 मार्च को लुधियाना वापस पहुंच जाएगा। देखते हैं विकास मामली की एक रिपोर्ट।
ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥਾ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ 4 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 4 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਜੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਯਾਤਰੂਆਂ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਮੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ घर की सेवा का आनंद मान के वापस आइए। तो दोस्तों, वॉइस ऑफ एशियंस की ये खास खबरें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए सुखविंदर सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस। सॉफ्ट मखमली एहसास रोजा लाइपास।